Hello dear students, welcome to Bio Classes Online. Today we are going to discuss about the endomembrane system. Endomembrane system is a group of four cell organelles. The four cell organelles are endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. These four cell organelles have a different structure, but in some functions they coordinate with each other. Because they coordinate with each other on certain functions, they have been named as the endomembrane system. So the four cell organelles which constitute the endomembrane system are the endoplasmic reticulum, Golgi complex and lysosomes and vacuoles. Now coming to the first cell organelle of the endomembrane system, that is the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a three-dimensional, complicated and intercommunicating system of membrane-lined channels that run through the cytoplasm. And this endoplasmic reticulum has been discovered by Porter and Thompson in 1945 independently. They discovered this organelle independently in 1945, but the term endoplasmic reticulum has been coined by Porter in 1953. Now, before we discuss the structure of the endoplasmic reticulum, you must be aware that it is the endoplasmic reticulum which remains continuous with the plasma membrane, nuclear envelope and Golgi complex. ये ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कंटिन्यूस रहती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ. तो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन once in the NEET examination, which of the following cell organelle is connected with the nuclear envelope? So it is the endoplasmic reticulum. Now coming to the structure, endoplasmic reticulum is formed of three types of elements. तीन types के element से बना हुआ होता है endoplasmic reticulum. First one is cisternia, vesicles and tubules. Now have a look on the this diagram or the picture. The first picture is of the one of the element, that is the cisternia. As you see, these are long flattened sac-like structures and are around 40 to 50 nanometer in diameter. You can see here that these cisternia lie parallel to one another. And here again the important point regarding the NEET is these are the cisternia whose membranes bear the ribosomes. ये सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्निया होते हैं उनके मेम्ब्रेन्स पे राइबोसोम्स होते हैं. जो यहाँ पे आप जो डॉट डॉट देख रहे हो, ये these dots are the ribosomes. The next one is next element of the endoplasmic reticulum are called as the tubules. As the name indicates, they are tube-like, irregular or branched structures forming a reticular system along with the cisternia and the vesicles. और ये ब्रांचेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका डायमीटर 50 to 100 नैनोमीटर होता है. And the third element of the endoplasmic reticulum are rounded or oval membrane bound sacs जिनको हम vesicles कहते हैं और इनका डायमीटर होता है 25 to 500 नैनोमीटर. And one thing more यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, it is only the cisternia whose membranes bear the ribosomes, while as the tubules और vesicles के membranes पे ribosomes mainly attach नहीं होते हैं. Now coming to the types of the endoplasmic reticulum, depending upon the nature of the membranes of endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन्स का नेचर कैसा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं. एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक. एज द नेम इंडिकेट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके मेम्ब्रेन स्मूथ होते हैं बिकॉज इनके मेम्ब्रेन्स पे कोई भी राइबोसोम्स अटैच
नहीं होते हैं। वाइल एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन्स का जो सरफेस होता है दैट इज रफ होता है, जस्ट लाइक द कोरस सैंड पेपर की जो सरफेस होती है जिस तरह रफ होती है, उसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी सरफेस होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि इनके मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होते हैं राइबोसोम्स। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई प्रोटीन है जो हेल्प करता है राइबोसोम्स को या राइबोसोम्स को अटैच करने में टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक प्रोटीन होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं राइबोफोरिन्स और राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2 होते हैं जो हेल्प करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू गेट अटैच्ड विद द राइबोसोम्स। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइबोफोरिन 1 and riboforin 2 are the glycoproteins which help to attach the ribosomes to the endoplasmic reticulum. So you can see here in the picture that this is the part, you can see here this is the rough part or the rough endoplasmic reticulum, while as this is the smooth endoplasmic reticulum, because you can see here the dotted or beaded appearance on the rough endoplasmic reticulum, because these bead like structures are the ribosomes attached to the rough endoplasmic reticulum, while as the membranes of the smooth endoplasmic reticulum, you can see here that they are the membranes are the smooth in appearance because no ribosomes are attached to it. Next, now coming to the functions of the smooth endoplasmic reticulum. The first function of the smooth endoplasmic reticulum is it helps us in the glycogenesis and glycogenolysis, and the second important function of the smooth endoplasmic reticulum is that these smooth endoplasmic reticulum help us in the synthesis of fats or lipids. And this question has again been asked in the NEET examination, which organelle is responsible for the synthesis of lipids. And it also helps us in the formation of the visual pigment from the vitamin A in case of the retinal cells. Next important function of the smooth endoplasmic reticulum is it helps us in the detoxification of the harmful drugs in the liver cells के अंदर जो smooth endoplasmic reticulum होता है वो हार्मफुल ड्रग्स को हार्मलेस में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन दैट इज कॉल्ड P450. P450 is the protein in the smooth endoplasmic reticulum which help us to detoxify the harmful drugs. And another important function of the smooth endoplasmic reticulum is the synthesis of the steroid hormone. Again, one of the important function of the smooth endoplasmic reticulum, it helps us in the synthesis of the ascorbic acid और जिसको हम कहते हैं vitamin C. Now coming to the functions of the rough endoplasmic reticulum, as I already mentioned that the rough endoplasmic reticulum possesses the glycoproteins called as the riboforins, that is riboforin 1 and riboforin 2, and these riboforins provide the these endoplasmic reticulums provide the attachment site for the ribosomes. And once the ribosomes get attached to the endoplasmic reticulum, they help in the protein synthesis. Rather, we can say it is the rough endoplasmic reticulum where the protein synthesis occurs due to the presence of the ribosomes. So, rough endoplasmic reticulum की जो main function, that is the protein synthesis, and the most important function that it helps us in the ग्लाइकोसाइलेशन जो ही प्रोटीन बन गया राइबोसोम्स पे, तो वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाता है, कौन से एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और उस पे ऐड हो जाता है एक ओलिगोसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट
और addition of oligosaccharide to the protein is called as glycosylation and results in the formation of the glycoproteins. While as here you can see here दो किस्म की ग्लाइकोसाइलेशंस होती हैं, एक को हम कहते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, दूसरे को हम कहते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन क्या होती है। प्रोटीन्स के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम कहते हैं एस्परजीन। इस एस्परजीन में अमाइनो ग्रुप होता है NH2। अब अगर प्रोटीन के एस्परजीन अमाइनो एसिड पे जो अमाइनो ग्रुप हैं उसके साथ ओलिगोसैकेराइड ऐड हो जाती है और बना देती है ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे ग्लाइकोसाइलेशन को हम कहते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। और दिस ग्लाइकोसाइलेशन इज ए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, वाइल एज प्रोटीन सिंथेसिस के बाद प्रोटीन में कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हो जाती है उनको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। सो प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन के साथ अटैच होता है ओलिगोसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट। सो ये एक मॉडिफिकेशन है, प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको दिस इज a type of a post-translational modification. Now, coming to some of the common functions of the rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. The most important function of the endoplasmic reticulum, both the endoplasmic reticulums, is that they provide an ultrastructural skeletal framework to the cell and thus gives the support to the colloidal cytoplasmic matrix. These endoplasmic reticulum provide a skeletal framework to the cell. Next important function of the both endoplasmic reticulums is that they form a desmotubule in the plasmodesmata. So this desmotubule connects the two adjacent protoplasts through the plasmodesmata. And in case of muscle cells, the endoplasmic reticulum is called as the sarcoplasmic reticulum and helps in the regulation of the calcium ions and thus helps in the muscle contraction and relaxation. Now let us have a look on some of the important MCQs which have been already asked in the NEET examination. The first MCQ from the endoplasmic reticulum is the main organelle involved in the modification and outing of the newly synthesized protein to their destination is। देखिए जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स और वैक्यूल्स या लाइसोसोम की फॉर्म में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। पूरा एक्सपोर्ट नहीं कह सकते हम, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। सो मैन जो है अगर यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होती तो वो भी सही था, अगर लाइसोसोम होता तो वो भी सही, लेकिन यहाँ पे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दी गई है जो इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड देखिए यहाँ पे लाइसोसोम तो नहीं है क्योंकि इट इज़ लाइसोसोम के अंदर किसी भी प्रोटीन की मॉडिफिकेशन नहीं होती है। मॉडिफिकेशन प्रोटीन्स की दो जगह पे होती है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ग्लाइकोजन को तो सिंथेसाइज नहीं करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स तो नहीं होती है वहाँ पे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फॉस्फोलिपिड्स को नहीं होते, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाइपिड्स की सिंथेसिस होती है। सो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन 2015। नेक्स्ट, डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो मैंने पहले ही जिक्र किया था कि इट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच रिमेन्स कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो द राइट आंसर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इसको भी मैंने इससे पहले डिस्कस
किया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेजर साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द लाइपिड्स, नॉट द प्रोटीन, नॉट द कार्बोहाइड्रेट, नॉट द विटामिन्स। विच सेल ऑर्गेनली इज कंसर्नड विद द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन। देखिए, इससे पहले मैंने जिक्र किया कि दो जगह पे ग्लाइकोसाइलेशन होती है, दो जगह पे प्रोटीन्स पे कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन दी गई है, अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिया होता तो वो भी सही होता। Now coming to the Golgi complex or the Golgi apparatus. This Golgi complex or Golgi apparatus is a complex of protoplasmic structures made up of flat, expanded, intercommunicating cisternia, a network of tubules with vesicles and vacuoles. ये एक intercommunicating प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बने हुए होते हैं सिस्टर्निया, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स से। एंड दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय कैमेलो गोल्जी इन 1898 इन द नर्व सेल्स ऑफ बारन ओवल एंड कैट by means of a special technique called as metallic impregnation method। ये टेक्निक, इस टेक्निक से इसको डिस्कवर किया गया है कैमेलो गोल्जी। दैट इज़ वाई because it has been discovered by the Camillo Golgi, that is why it has been named as the Golgi complex in the honor of the of its discoverer. Now, having the look of the structure of this Golgi complex, स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इन प्लांट सेल्स और फंजी सेल्स की बात अगर हम करेंगे, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो बना होता है नंबर ऑफ अनकनेक्टेड यूनिट से, जिनको हम कहते हैं डिक्टियोजोम्स। डिक्टियोजोम्स। और एक प्लांट सेल में मेनली 10 to 20 डिक्टियोजोम्स होते हैं। डिक्टियोजोम्स आर नथिंग द अनदर नेम ऑफ द Golgi complex present in the plant cells. So now having a look on the structure of the Golgi complex, जैसे मैंने जिक्र किया कि यहाँ पे Golgi complex 4 चीज़ों से बना होता है, सिस्टर्निया, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड गोल्जी एंड वैक्यूल्स। दी सिस्टर्निया जो होते हैं, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्यूल्स और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, और मेनली ये होते हैं 4 से 8 होते हैं। और ये सिस्टर्निया जो होता है, दी आर curved like a shallow bowls to give a definite polarity to the Golgi apparatus. ये curved shaped में होते हैं so that it give rise to particular polarity to this Golgi apparatus। और वन फेस अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, दीज जो यहाँ से यहाँ हो, जो मैंने रेड से दिखाया ऊपर से नीचे, दीज आर द सिस्टर्निया, और ये कर्वड होते हैं और 2 फेजेस बना देते हैं। एक को हम कहते हैं सिस फेज और जिसको फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेज। और फॉर्मिंग फेज कौन सा फेज होता है? कन्वेक्स फेज। कन्वेक्स साइड को हम कहते हैं फॉर्मिंग फेज और सिस फेज। लाइज टुवर्ड्स, ये टुवर्ड्स होता है सेल मेम्ब्रेन पे। और दूसरा जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो जो कनकेव होता है, कनकेव साइड को हम कहते हैं ट्रांसफेज और मैच्योरिंग फेज, और इट रिमेन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, गोल्जियन सिस्टर्निया जो होते हैं सैक लाइक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें जो कर्वड होते हैं, और इस कर्वड होने की वजह से इनमें ये 2 फेजेस बनते हैं इस गोल्जी एपरेट्स में। एक को हम कहते हैं सिस फेज और फॉर्मिंग फेज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और दूसरे को हम कहते हैं जो कन्वेक्स वाले को हम कहते हैं सिस और फॉर्मिंग फेज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और कन्वेकेव साइड को हम कहते हैं ट्रांसफेज और मैच्योरिंग फेज जो न्यूक्लियस की तरफ होता है। तो नेक्स्ट पार्ट जो अगर हम आप यहाँ पे अब देखने की कोशिश करोगे
तो यहाँ पे दूसरा पार्ट जो इसमें होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दोज आर कॉल्ड द ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ट्यूब्यूल्स आप यहाँ पे देख लीजिए, ट्यूब्यूल्स आर शॉर्ट ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग एज ए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क टुवर्ड्स द पेरिफेरल एंड मैच्योरिंग फेज ऑफ द एपरेट्स। यहाँ पे आप ट्यूब्यूल्स देखने की कोशिश कर ली, दीज आर द ट्यूब्यूल्स, दीज आर द ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल्स के बाद अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, ट्यूब्यूल्स के बाद यहाँ पे वेसिकल्स भी होते हैं, जिन जो याद रख लीजिए, वेसिकल्स होते हैं स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड अटैच्ड एट द एंड्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स। एंड्स जो ट्यूब्यूल्स के एंड्स पे अटैच होते हैं, इनको हम सिक्रीशन वेसिकल्स कहते हैं या सिक्रेटरी वेसिकल्स भी कहते हैं। तो इनके दो टाइप्स हो सकते हैं, स्मूथ और कोटेड। स्मूथ वेसिकल्स है स्मूथ सरफेस एंड कंटेन सिक्रेटरी सबस्टेंस। स्मूथ वेसिकल्स जो होते हैं, इनकी सरफेस स्मूथ होती है और इनको हम, इनमें सिक्रेटरी सबस्टेंस हो, इनको हम सिक्रेटरी सबस्टेंसेस भी कहते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स भी कहते हैं। कोटेड वेसिकल्स है रफ सरफेस एंड एलाबोरेट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। they carry materials to or from the cistern। कौन से? रफ coated vesicles। now coming to the Golgian vacuoles। Golgian vacuoles होते हैं वो वैक्यूल्स जो पिच ऑफ हुए हैं फ्रॉम द कनकेव और मैच्योरिंग फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस। गोल्जियन एपरेटस के जो मैच्योरिंग फेज होता है या कनकेव साइड जो होता है, वहाँ से जो वैक्यूल्स वेसिकल्स सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पिंच ऑफ हुए हैं, उनको हम कहते हैं गोल्जियन वैक्यूल। और इन गोल्जियन वैक्यूल्स में एमॉर्फस ग्रेन्युलर सबस्टेंसेस होते हैं। some of them contain hydrolyzing enzymes and act as lysosomes। so lysosomes का बनते हैं गोल्जी एपरेटस से, क्योंकि जो गोल्जियन वैक्यूल्स में अगर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होंगे तो वो एक्ट करते हैं एज ए लाइसोसोम्स। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस, the most important functions of the Golgi complex, one is the secretion. As we already discussed, some of the vesicles smooth vesicles or some of the vesicles are smooth and are called the secretory vesicles because they possess the secretory substances, so and help in the secretion of the materials from the Golgi body to the final destination. And also they help in the formation of some complex carbohydrates. Complex carbohydrates such as pectic compounds, such as mucopolysaccharides, such as high urinic acid, such as chondroitin sulfate, such as hemicellulose, etc. These all are synthesized by the Golgi complex. In addition to the complex carbohydrates, they also help in the synthesis of the special carbohydrates such as salic acid and galactose. एंड वन थिंग इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बात की कि प्रोटीन जब आता है पहले राइबोसोम से बन गया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनकी एनलिक्विड ग्लाइकोसाइलेशन हो गई, फिर वो वेसिकल्स वहाँ से निकलते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं गोल्जी एपरेटस में। और गोल्जी एपरेटस में प्रोटीन में फिर से ग्लाइकोसाइलेशन एडिशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड होते हैं और रिजल्ट्स इन द ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइलेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज एन ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, बिकॉज यहाँ पे ऐड होता है एक अमाइनो एसिड होता है दैट इज कॉल्ड द सीरीन। उस सीरीन में OH ग्रुप होता है और उस OH ग्रुप के साथ अटैच होता है oligosaccharide. That is why here the glycosylation is called as the O-linked glycosylation. So N-linked glycosylation occurs in the endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, and O-linked glycosylation occurs in the Golgi complex or Golgi apparatus. In addition to this, it also helps us in the formation of the lipoproteins, and addition of lipids to the proteins occurs in the Golgi complex, and this process is called liposylation.
glycosylation, and also help us in the formation of the cell wall in case of plants, and formation of plasma membrane or plasma lemma, and also help us in the formation of the acrosome of the sperm, and synthesis of the retinal pigment has been observed in the chick embryo. चिक एम्ब्रियो में देखा गया है कि रेटिनल पिगमेंट जो बनता है वो बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में. नाउ हैव अ लुक ऑन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट MCQs which have been already asked in the NEET examination. The Golgi complex participation in the formation of the secretory vesicles. Next, important site for the formation of glycoproteins and glycolipids, and this is the Golgi complex where the glycoproteins and glycolipids are formed. Next, the Golgi complex plays a major role in the post-translational modification of proteins and glycosylation of the lipids. So this is the right answer. Now have a look on another cell organelle of the endomembrane system. Endomembrane system की जो next organelle है, that is the lysosomes, and these lysosomes are small membrane bound vesicles containing hydrolyzing enzymes in the form of crystalline or semi-crystalline granules. ये lysosomes जो होते हैं ये membrane bound सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके अंदर एक एसिड हाइड्रोलिसिस होते, एसिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, और इनको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं या डिस्पोजल यूनिट्स भी कहते हैं या रिसाइकलिंग सेंटर्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, देखते हैं हम क्यों कहते हैं इनको हम सुसाइड बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ऑटोलिटिक रोल होता है इन सेल्स में. दे हैव द रोल टू डिस्ट्रक्ट its own cells when the cell gets damaged by any means. They are also called the disposal units because they digest the incoming food material and remove the foreign bodies, toxic substance and debris. इनको डिस्पोजल यूनिट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इनकमिंग फूड मटेरियल आता है उसको डाइजेस्ट करता है और रिमूव कर देता है फॉरेन मटेरियल्स, टॉक्सिक सब्सटेंस और डेब्रिस को. इनको हम रिसाइकलिंग सेंटर्स कहते हैं क्योंकि दे ब्रेक डाउन द वॉर्न आउट सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज टू द कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स फॉर बिल्डिंग न्यू ऑर्गेनेलीज एंड सेल. ये इनको हम इसलिए रिसाइकलिंग सेंटर्स कहते हैं क्योंकि ये ब्रेक डाउन कर देते हैं जो वॉर्न आउट सेल्स होती है या सेल ऑर्गेनेलीज होती है ऐसे कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स में, जो कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स हमें नई ऑर्गेनेलीज या सेल बनने में मदद करेंगे. एंड these lysosomes were first reported by Christian D. Dew in 1955 in the rat liver cells through fractionation technique. And these organelles, lysosomes, have been observed under electron microscope for the first time by the Nevikov in 1956. और इन ऑर्गेनेलीज के जो बाहर एक मेम्ब्रेन होता है और इस मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं और एसिड हाइड्रोलाइसिस होते हैं. इन अंदर इस लाइसोसोम्स के अंदर पीएच जो होता है बिलो 7 होता है. बिलो 7 इज द एसिडिक पीएच. And the different kinds of the enzymes such as lipases, proteases, glycosidases, which help in the breakdown of the carbohydrates, proteins, and lipids in an acidic environment. So they already mentioned that these are small membrane bound vesicles containing hydrolyzing enzymes in the form of crystalline or semi-crystalline form. This is the structure of the lysosomes. And now kinds of lysosomes. What are the different kinds of the lysosomes? Lysosomes are of 4 main types: primary lysosomes, secondary lysosomes, residual bodies or residual lysosomes, autophagic vacuoles or autophagosomes और autolysosome. चलते पहले टाइप के लाइसोसोम के. जो न्यूली पिंचड ऑफ वेजिकल जो निकल जाता है गोल्जी एपरेटस से जिसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होंगे जो
उसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। जो कोलेजन वैक्यूल पिंच ऑफ हुआ है जिसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होंगे और एक्ट करता है एज ए लाइसोसोम, उस लाइसोसोम को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स वो लाइसोसोम्स होते हैं जो बनते हैं बाय मींस द फ्यूजन ऑफ फूड कंटेनिंग फैगोसोम विद लाइसोसोम। जो फूड कंटेनिंग फैगोसोम, जो बाहर से अगर फूड पार्टिकल आया वेजिकल में, वो जब वो फूड पार्टिकल फ्यूज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फैगोसोम, जब वो फ्यूज हो जाएगा लाइसोसोम के साथ, प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, और वहाँ पे जो लाइसोसोम बनता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम या हेटेरोफैगोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल। Now the third type of the residual bodies और रेजिडुअल लाइसोसोम। जब प्राइमरी सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया तो सेकेंड फूड वेजिकल में जो सेकेंडरी लाइसोसोम में फूड पार्टिक मटेरियल्स होंगे, उनमें उनकी डाइजेशन होगी, तो वो डाइजेस्टेड फूड विल बी सर्कुलेटेड टू द सेल, while as some of the food remains undigested in the secondary lysosome, और वो बन जाता है, वो फूड उसी लाइसोसोम में रह जाता है थोड़ा सा, और उस वक्त जिसमें वो लाइसोसोम जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड रहता है और उस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर देता है फ्रॉम द सेल बाय मींस ऑफ एक्सोसाइटोसिस और इफेजी, और उस लाइसोसोम को हम कहते हैं रेजिडुअल बॉडी और रेजिडुअल लाइसोसोम। And the fourth type of the lysosome is called as autophagic vacuole और autophagosome और autolysosome। ये बन जाते हैं by means of the fusion of number of primary lysosomes around the worn out or degenerate intracellular organelle। जब एक ऑर्गेनेली हमारी अंदर सेल के अंदर वॉरन आउट होगी या डिजेनरेट होगी, तो उसके साथ अगर प्राइमरी लाइसोसोम्स फ्यूज हो जाएंगे, तो उस वक्त जो लाइसोसोम बनता है उसको हम कहते हैं ऑटोफैजिक वैक्यूल और ऑटोफैगोसोम और ऑटोलाइसोसोम। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ऑटोफैगी और ऑटोडाइजेशन। नाउ have a look on some of the important functions of the lysosome. The first important function of the lysosome is that it will help us in the intracellular digestion. Next, it acts as a natural defense of the body by killing the microorganisms in case of the ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो सेल्स होती है WBC सेल्स के, इनमें जो लाइसोसोम्स होते हैं, और लाइसोसोम्स में जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं वो किल करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को, फॉरेन प्रोटीन्स को, फॉरेन टॉक्सिक सब्सटेंस को, बैक्टीरियाज को। सो वी कैन से इट हेल्प्स इन द नेचुरल डिफेंस। नेक्स्ट इज दैट जो डेड सेल्स और डिब्रेस जो एक्यूमुलेट होता है एट द साइट ऑफ इंजरी, उनको डिस्ट्रॉय करने में, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है लाइसोसोम्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। सो इट ऑल these lysosomes also act as the natural scavengers of the body, and the process is called as the natural scavenging. Or lysosomes are also involved in the autolysis, that is the self destruction of the cell, tissue or organ। जब भी कोई सेल वॉर्न आउट हो जाएगी या ओल्ड सेल हो जाएगी, डिजेनरेटेड सेल होगी, उसकी ब्रेक डाउन करते, उसकी डेथ कर देता है बाय मीन्स ऑफ ए नेचुरल प्रोग्रामर डेथ, दैट इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। एंड दीज लाइसोसोम्स आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द कार्सिनोजेन्स होते हैं वो केमिकल्स जिनसे कैंसर हो सकता है। तो इन कार्सिनोजेन्स को रिमूव करने में लाइसोसोम्स का अहम रोल होता है। नाउ हैव अ लुक ऑन सम ऑफ द MCQs which have been asked in the NEET. Lysosomes are rich in hydrolytic enzymes, and it has been asked twice in the NEET in 1996 and 2000. Kristen Didu discovered lysosomes from, कहाँ से उसने डिस्कवर, किस एनिमल्स पे डिस्कवर किए थे क्रिस्टन ड्यूड्यू ने लाइसोसोम्स को? रैट लिवर सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेम्ब्रेनस बैग with hydrolytic enzymes which is used for controlling intracellular digestion of macromolecule is called। वो membranous bag जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उसको तो हम लाइसोसोम कहते हैं। सो नेक्स्ट
we can have a look on the vacuoles. Vacuoles have been discovered by, it is the vacuoles here, vacuoles. So the important one, another this cell organelle which is which is one of the component of the endomembrane system are the vacuoles. These vacuoles have been discovered by the Antony van Leeuwenhoek in 1676 and are membrane bound sac like vesicles. और इस vacuoles के चार टाइप्स होते हैं: सैफ vacuoles, contractile vacuoles, food vacuoles and gas vacuoles, and the most important one are the sap vacuoles. सैफ वैक्यूल्स, सैफ वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये सैफ वैक्यूल्स फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं या वेसिकल्स होते हैं जिनके बाहर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और जिस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हर एक वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। नो, इट इज़ द सैफ वैक्यूल्स जिनके मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और इन सैफ वैक्यूल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेल सैप और वैक्यूलर सैप, जिसमें मिनरल्स होते हैं, इनमें मिनरल्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एस्टर्स होते हैं, वाटर soluble pigments are the anthocyanins, and it has been asked which one of the following is a water soluble pigment. Water soluble pigments are the anthocyanins, and these sap vacuoles also contain various kinds of the waste products in solution or as in crystalline deposits. So the second type of vacuoles are called the contractile vacuoles. Contractile vacuoles are vacuoles जो enlarge हो जाते हैं by accumulating the fluids and collapse by throwing them out of the cell. ये वो vacuoles होते हैं जो enlarge होते हैं जब वो accumulate fluid करेंगे, जब वो fluid अंदर ले लेते हैं और फिर कोलैप्स हो जाते हैं जब वो उस फ्लूइड को बाहर कर देते हैं सेल से। दीज काइंड ऑफ वैक्यूल्स हैव बीन फाउंड इन द प्रोटोजोन्स एंड इन सम एल्गीज। कौन से वैक्यूल्स? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। जब ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दीज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर कनेक्टेड टू ए फीडिंग कैनाल्स, और ये फीडिंग कैनाल्स से ऑब्टेन करते हैं वाटर विद और विदाउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा, जब ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फ्लूइड लेते हैं बाहर से और स्वेल अप हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायस्टोल। जब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फ्लूइड लेते हैं बाहर से और स्वेल अप हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं डायस्टोल। और जब ये इनलार्जर वैक्यूल सरफेस की तरफ मूव करता है और डिस्चार्ज करता है जो भी इसके अंदर कंटेंट्स हैं, और उस वक्त ये कोलैप्स हो जाता है, उसको हम कहते हैं सिस्टोल। एंड दीज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स have been found in the protozoans and some algal cells. And the third class of the vacuoles are called the food vacuoles. वो vacuoles जैसे लाइसोसोम्स में हमने बताया कि जो प्राइमरी लाइसोसोम्स जब होते हैं, जब वो फ्यूज़ करते हैं फैगोसोम के साथ, तो उस वक्त जो वैक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। और द लास्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड गैस वैक्यूल्स और सीडो वैक्यूल्स। देखिए, these are in actual sense these are not the membrane bound vacuoles, these gas vacuoles, these are found in the some prokaryotes. Gas vacuole in fact क्या होता है, they are the group of submicroscopic vesicles, और हर एक सब माइक्रोस्कोपिक वेसिकल के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन होता है। और इन गैस वैक्यूल्स में जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, इनमें गैसेस होते हैं, और इन गैसेस की वजह से दे रेगुलेट द बायोएनसी ऑफ द सेल, सो द सेल्स आर एबल, दे शो द बायोएनसी ड्यू टू दीज गैस वैक्यूल्स। Subscribe and share bio classes online by Ashok Hussain. Thank you.